Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 3 video of natural resource. This is the important series of revision in which you have learned the part 1 and part 2. In part 1 video, you have learned the question number 1 to 8, and in part 2 video, you have learned the question number 8 to 18. In this video lecture, in part 3 video lecture, you will revise the question number 19 onward. This is all about the matter of very short answer type question. It may be the 1 marks or maximum 2 marks question. The very short answer type question may be 1 marks or maximum 2 marks question. But keep in mind, this is the part 3 video, and in previous part 1 and part 2, you have learned the question number 1 to 8 in part 1 and question number 8 to 18, that is question number 9 to 18 in part 2 video. In this series, you will learn the question number 19 onward, and I hope you have a pen paper in order to note down the important concepts, because the 1 marks or 2 marks question are actually the concept based question. They may also ask in the different way in the 5 marks question or 4 marks question. So I have in the previous video lecture explained very elaborate and very enhancing view of the 1 marks and 2 marks question, so that if it will be asked as a 5 marks or a 4 marks question, then it can clearly identify it and it can clearly resolve. Actually every questions are correlate with each other, whether the questions are 1 marks or 2 marks. So every questions are having the different meanings, and every questions has the different correlation. It may be the 1 mark question may attach with the 5 marks. For example, in previous video lecture you have learned the components of soil. So the components of soil may be 1 marks or maybe 5 marks, depend upon their number. You should also ready for that kinds of question. They may be asked as a 1 marks or 2 marks. Similarly, the effects of pollution over the body, effects of pollutions over the ecosystems may be the 1 marks or maybe the 5 marks. So you should prepare yourself with the different kinds of question that may probably ask in the upcoming examination. I hope you have pen paper in order to note down the important concepts regarding the question number 19 onward. So back over the question number 19 in order to explain deeply. Now the very short answer type question. This is all about matter of very short answer type question, and almost all questions of very short answer type question is covered. Now back to question number 19. Question number 19. The last question of previous video lecture was question number 18, and that was mention the 2 form of precipitation in nature when the temperature of एयर इज़ वेरी लो. जब टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है तो 2 प्रेसिपिटेशन के बारे में पूछा था, और ये मैंने आपको बताया था. दे आर मे बी इन फॉर्म ऑफ स्मॉग और इन फॉर्म ऑफ हेल और स्मॉग इन फॉर्म ऑफ फॉग. ठीक है, ये या तो फॉग होते हैं या फिर क्या होते हैं, स्मॉग होते हैं, या फिर क्या होते हैं, हेल होते हैं. ये सब सारी चीज़ें लास्ट वीडियो लेक्चर में ही मैंने क्लियर कर दिया था. इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम की आप लिस्ट बना करके उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, और मैं अब इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 19 को पिकअप करने जा रहा हूँ. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19. नेम द फैक्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन रेनफॉल पैटर्न्स इन इंडिया. पूछ रहा है कि नेम द फैक्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन रेनफॉल पैटर्न्स. इंडिया में रेनफॉल पैटर्न्स बेसिकली डिसाइड किससे होता है, सबको पता है. इट डिसाइडेड फ्रॉम द साउथ वेस्ट, the monsoon of southwest or northwest monsoon. That is, it decided by south west and north east monsoon. The rainfall of India is decided by southwest monsoon or north east monsoon. So these two actually decide overall rainfall in India. That may probably ask in upcoming examination. So overall rainfall of India that decided by the southwest monsoon and the northeast monsoon. Now back to the next question. Question number 20. Combustion of fossil fuels
result in the increase of suspended particulate matter in air। कह रहा है कि अगर फॉसिल फ्यूल्स कॉन्टीन्यूसली हम जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल कोल हुआ, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया गया था पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम ये भी जो है नेचुरल रिसोर्स है और ये फॉसिल्स फ्यूल है, ठीक है। तो कोल पेट्रोलियम कुछ भी आप जला रहे हैं तो उससे काफ़ी अबंडेंट अमाउंट में, काफ़ी बिग अमाउंट में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, स्मोक हुआ, डस्ट पार्टिकल्स हुआ, हवा में इंक्रीज होते हैं और वो कंडेंसेशन पार्टिकुलर जो है एयर पॉल्यूशन काज करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि वेयर आर दीज पार्टिकल, व्हाट आर दीज पार्टिकल्स, उस पार्टिकल्स का नाम पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर आप फॉसिल फ्यूल्स कॉन्टीन्यूसली जला रहे हैं तो होता क्या है कि उससे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है क्या, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। नोट करना है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ये की जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है जो पॉल्यूटेंट्स काज करता है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, कार्बन पार्टिकल्स ये भी पॉल्यूशन काज करता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन पार्टिकल्स हुआ, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन हुआ, साथ में ही जो कार्बन ऐश है, ठीक है, कार्बन ऐश जो राख होती है, हवा में उड़ती है कोल के जलाने से, वो सब जो है क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और एयर पॉल्यूशन जो है काज करते हैं। आपने सुना होगा PM10 वैल्यू, ठीक है, दिल्ली वाले ज़्यादा परेशान होते हैं ठंडी में। एक्चुअल में क्या होता है, P मीन्स होता है पार्टिकुलेट, M मीन्स होता है मैटर। जो पार्टिकुलेट मैटर है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर उसकी साइज काफ़ी बड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितनी छोटी साइज होगा, जैसे PM2.5 हुआ, ठीक है, ये साइज छोटी, इतना ज़्यादा डीप हमारे बॉडी में इनहेल होगा, लंग्स तक पहुंचने की कैपेसिटी रखेगा और उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। PM10 जो है बड़ा है तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही फंस के रह जाएगा, लेकिन PM2.5 जो है ये छोटा होता है। जितना छोटा होता है पार्टिकुलेट मैटर उतना ही ये खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, नोट कर लीजिए, आधा जला हुआ हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन ऐश, इसी वजह से CNG का लोग यूज करते हैं। CNG कम्प्लीटली जो है जल जाती है और ये पेट्रोलियम और बाकी चीज़ें कम्प्लीटली नहीं जलती है, जो रेसिड्यू बचता है वही सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बनाता है। आई होप ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हाउ आर फ्रोजन वाटर बिटवीन क्रैक्ड रॉक काजेस क्रैक टू द वाइट, क्रैक टू वाइट। कह रहा है कि फ्रोजन वाटर यानी कि जो वाटर होता है वो कैसे जो है रॉक को यानी कि पत्थरों को, चट्टानों को कैसे तोड़ता है, इसी को एक्सप्लेन करना है। लिसन केयरफुली, आपको बताया गया था जो रॉक होते हैं ना, इंपॉर्टेंट जो रॉक होते हैं, सपोज दैट ये रॉक है, ठीक है, ये रॉक है और ये क्या है, ये दूसरा रॉक है। तो होता क्या, इसके बीच में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर भर गया है, ठीक है, और वो जम गया, पूरी तरह से जम गया है, इसको बोल सकते हैं हम फ्रोजन वाटर। क्या बोल सकते हैं, फ्रोजन, ठीक है, फ्रोजन वाटर। फ्रोजन वाटर ये जमने के बाद जो है, ये खास बात होती है सॉलिड सब्सटेंस की, वो एक्सपेंड होता है। तो ये अगर ये एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम ये आएगी कि कुछ समय के बाद जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे और वाटर जो है, वाटर एज यूजुअल बीच में पड़ा रह जाएगा, जो गर्मी पड़ते ही मेल्ट हो जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट water due to over cooling, water due to over cooling, over water due to over cooling becomes solid, becomes solid and able to expand, expand when the volume of overall solid ice get increase, then it create a force, it create
force over rock so that rock get broken down. Rock get broken down. So these are the overall process of explanation. How do explain the how can you explain the water when become in frozen stage responsible to crack the rock? Water overcooling gets solid by means of frozen solid, and it able to expand in the volume even when the water more water get consumed in the get deposit in the frozen water, and it will later become more solid and more cooled. Then it can create the pressure over the rock so that the rock get converted into the small pieces, that is known as the breakdown of rock or rock cracking to widen. Keep in mind this rock later participate in the soil formation, that is known as the pedogenesis. So रॉक फाइनली गेट ब्रोकन डाउन, यानी कि ये चट्टान पे ये बर्फ जो है प्रेशर डालता है जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, नेम द टू गैसेस विच काज ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। कह रहा है कि दो ऐसे गैस का नाम लिखिए जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। कई बार बताया गया था, कौन कौन से गैस थे? मीथेन, नोट करते जाएं, एग्ज़ाम में अगर आएगा तो इसको लिखना ही पड़ेगा। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड इसको तो लिख ही लेंगे, इसके अलावा वाटर वेपर। ठीक है, ये क्या है? वाटर वेपर है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर दैट रिस्पॉन्सिबल टू ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ठीक है, दो पूछा हमने, तीन बता दिया। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में लास्ट में बताया गया था कि देयर आर द लेयर ऑफ गैस दैट प्रेजेंट अबव द अर्थ एंड दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, that responsible for trapping of heat energy from sunlight so that the heat never accumulate, heat never released out, heat never goes back to the atmosphere. It actually accumulates through our atmosphere and causes heat effect. The heat effect due to greenhouse gas is known as greenhouse effect. The main effect of greenhouse effect is the greenhouse gas is global warming. So overall question number 22 is over. Now back to the next 23. Name the two biologically important compound that contain both oxygen and nitrogen. कह रहा है कि दो ऐसे बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट कंपाउंड का नाम बताओ जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होता है। लिसन, ऑक्सीजन भी हो और नाइट्रोजन भी हो, तो उसको नोट कर लीजिए कॉपी में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो एमिनो एसिड्स होता है, एमिनो एसिड्स। और एमिनो एसिड्स का बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ही होता है। तो ये हो गया प्रोटीन। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड का नाम आपने सुना होगा, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ये बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सबस्टेंस है जिसमें ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है? बॉडी में पार्टिसिपेट करता है, बॉडी डिजाइन और बॉडी का जो हाइट है, ग्रोथ है, वेट है, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये हमारा जेनेटिक मटेरियल बनाता है, यानी हमारे पेरेंट्स की तरह से हमारी बॉडी डिजाइन दिखती है। इसका मतलब ये हमारे बॉडी में कुछ न कुछ ऐसा है जो पेरेंट्स का है और बिल्कुल हमको पेरेंट्स जैसा बना दिया। जैसे आप देखोगे बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है, डॉग का बच्चा डॉग होता है, कैट का बच्चा कैट। रीजन क्या है कि उसके क्रोमोसोम में, उसके सेंटर में, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है और उसी में उसका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। हम लोगों में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ठीक है, कुछ वायरस होते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो ये डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल जो बिल्कुल पेरेंट्स की कार्बन कॉपी करता है। और ये किससे मिलके बना होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन से। जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही पूछ रहा है तो हम एग्जाम्पल न्यूक्लिक एसिड लिख सकते हैं, एग्जाम्पल डीएनए, आरएनए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं 24 पे। नेम टू एसेंशियल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट।
कह रहा है कि अब इसमें ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स का नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो दो तो ऊपर लिख ही लिया, क्या क्या लिख लिया, प्रोटीन लिख दिया था, प्रोटीन लिख दिया था और न्यूक्लिक एसिड लिख दिया था, न्यूक्लिक एसिड लिख दिया था। इसके अलावा एक और लिख दिया जिसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। एक बार और मैं बता दूं, कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन नहीं होता है, इन दोनों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सब होता है। इसमें सिर्फ कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसी वजह से इसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। चलो आते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो इससे पहले मैंने ऊपर बताया था अर्थ सरफेस, दिस इज द अर्थ एंड ओवर द अर्थ सरफेस वेरी स्पेशल layer of gases found known as the greenhouse gas. And example of greenhouse gas is the carbon dioxide, water vapor and methane. These are the important greenhouse gas. And how do it can cause the major problem when sunlight fall over the earth, then it also possesses the heat energy, and that heat energy when fall over the earth surface, then it reflect back, but the greenhouse gas never uh, left them. Greenhouse gas return back to the heat energy to the system, and after getting a lot of heat reflect by the earth after some time become heated. The earth after some time, after getting the reflect heat energy, become heat and warm. That continuous warming of earth surface due to effect of greenhouse gas called greenhouse effect. So the continuous increasing temperature of earth surface due to greenhouse gases like carbon dioxide, water and methane called as greenhouse effect. ठीक है, the result of greenhouse effect is global warming. Global warming is the result of greenhouse effect. I hope you can do the full explanation of greenhouse effect in your own language. Now question number, that is overall problems up to question number 25 is over. Overall problem up to question number 25 is over. Now the short answer type question is still pending, that may ask in the final examination by 2 marks or 3 marks. So deep explanation of short answer type question will be discussed in next video lecture, that is video lecture 4. In this video lecture you have learned the question number 19 to last of question number 25. 19 to question number 25, this is all about the matter of very short answer type question. So I hope not only you have revised along with the video lecture, you can also note down the important concept. These questions actually cannot find by you in your side book. This is actually the important question, but it cannot belong to in your side book. It is actually taken out from the different other source, but the question of side book will also be revised along with the video lecture 5 or 6. So you should make the important notes regarding the explanation. In next video lecture you will learn the question number 1 from short answer type question, that may the 2 marks, 3 marks or maybe the 4 mark question. So it is very important for you. So I hope you can understand the important concepts. You have your concept regarding all very short answer type question is clear. So this is all about matter of part 4th explanation. Now we wait for the part 5 video lecture. It will be uploaded tomorrow. Thank you.